Top 5 STDs. Can you tell us about that? Most common is still number one is very serious. You can say the HIV. Second one is Australia antigen positive, that is hepatitis. Third one is syphilis. Nowadays gonorrhea, herpes infection. It's fifth, lowest in that list. So these are the 5 common infections. In females, the herpes infections are very common. Because of unprotected sexual activity, the HIV and the hepatitis is very common. Even the syphilis is very common because of the unprotected activity. And the gonorrhea and this last one is the herpes infection are very common because of unprotected sex. Correct. And the unhygienic sexual activities. These are very common. Can you quickly tell one symptom of this? How do you know that you have this? You have to go for the lab investigation, not for first two. Yeah, first two basically, because they have the long window period and you cannot find out the symptom. And are they treatable? The HIV is till now not treatable, but yes, if you get HIV, it is a communicable disease. You should transmit to the other person by doing the unprotected sexual activity or sharing the syringes, mixing out the secretion from one person to another person's. But if the patient is having the HIV, he may have different type of symptoms considering his low immunity, and you should treat that disorder or the diseases the person is having. That one is HIV. If patient is having hepatitis, they should go to the gastroenterologist, find out what is the titer for the hepatitis and all. What is the symptom of hepatitis? Hepatitis, they get jaundice, yellow colored urine. It affects the liver. Yeah, it's affected. Hepatitis is an infection of the liver. Third one is syphilis. Syphilis, yes, they show some symptoms. They show some urethral discharge, the pus from the penis, pump on the private part of the area, the itching, pain during the urination, pain during the micturition, jo bolte hai. So that is very common. That is your syphilis. Syphilis. Even the gonorrhea have some symptoms like gonorrhea. And all these are for male and female both? Yeah, both. What about gonorrhea? What are the symptoms? Gonorrhea, again, they have the urethral discharge, the watery discharge, watery urine, pain during micturition, some pustule or some lesion over the genitals. They are very common in the gonorrhea. What about the last one? Last one is herpes infection. Herpes infection are the viral type of infection. They give the proper pustule. Pustule means proper pimples type of the lesions, any part of the body. Normally, there are herpes 1 and 2. Herpes 1 is above the waist and below the waist. And how do you get this virus? Because of the contact with the unprotected sex, or maybe the person have using the infected object of that person can also transmit your herpes. इस पांचों में से जानलेवा कौन सी है? अभी फिलहाल में जानलेवा सीरियस बीमारी आर ओनली 2. वन इज HIV एंड अनदर इज हेपेटाइटिस. और नीचे की जो 3 आपने बताई है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड हर्पीस, इसके साथ आदमी जिंदगी भर रह सकता है क्या? HIV, हेपेटाइटिस एंड हर्पीस, दीज आर द वायरल इन्फेक्शंस. ठीक है. दिस बेसिकली द हेपेटाइटिस एंड हर्पीस कैन बी कंट्रोल्ड, बट HIV even can be controlled with anti-retrotherapy, but they will be most dangerous है. HIV you will be carrier for the lifelong. हाँ, HIV, HSV, हेपेटाइटिस सब कैरियर रह सकते हैं. एक्टिव इन्फेक्शन नहीं रहेगा, बट यू मे हैव द कैरियर फॉर द लाइफ लॉन्ग. द गोनोरिया, सिफिलिस, these are the bacterial infections. अच्छा, गोनोरिया, सिफिलिस, bacterial infections. herpes, HIV and hepatitis are viral infection. तो एक बार होगा तो वो कैरियर बनते रहेगा आपके साथ में. वो आपको इन्फेक्शन नहीं देंगे, बट वो अपने बॉडी में रहेगा और निकलेगा नहीं. वो IgG जो इम्यूनोग्लोबिन बन के रहेगा. बट एक बार तुम्हारा सिफिलिस और ये जो है ये पूरे अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. एंटीबॉडी से अच्छा बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस एंड गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू यू. STD में बैक्टीरियल इन्फेक्शन अच्छे हो सकते हैं, बट वायरल इन्फेक्शन भी अच्छे होते हैं, बट दे यू मे बी द कैरियर फॉर द लाइफ. तो हर्पीस इज डेंजरस. हर्पीस बॉडी में रहेगा, फिर वो उसका जो भी लेजन्स रहते हैं वो लेजर से निकाल देते हैं. बट यस, यू कैन हैव द अगेन ट्रांसमिशन फ्रॉम द हर्पीस. तुम्हारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा, फिर से हर्पीस हो जाएगा. ये जो लोगों को जो दाढ़ी करके आते हैं, इतने छोटे छोटे दिखते हैं, दे आर ऑल्सो द वायरल वार्ड्स वो, लेकिन उनसे टॉवल ऑल से आते हैं. अपन जाते हैं नावी के पास में, वैसे भी हो सकता है ना किसी को हर्पीस. वैसे भी हो सकता है. डेंजरस है, बहुत डेंजर है. खत्म भी नहीं होगा वायरस रहेगा. IgG करके जो इम्यूनोग्लोबिन रहेगा वो रहेगा बॉडी में. व्हाट अबाउट HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? वायरल इन्फेक्शन, HPV जो वायरस. बट इज इट एन STD? Yes, it is STD again.
What about the black spots? I have seen people having wart, मतलब जो बोलते हैं ना मस्से रहते हैं, ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं कभी कभी गले पे, गर्दन पे, इधर उधर, वो भी HPV होता है ऐसा मैंने सुना है. नहीं, वो वायरल वार्ड्स होते हैं, वो है टू असेस देम बेसिकली. HPV एक वायरस इन्फेक्शन है. हाँ. वायरस इन्फेक्शन में जो भी लीजन्स आते हैं, उसको मैं शब्द लीजन इस्तेमाल करूँगा, जो भी लीजन्स आते हैं वो पैपिलोमा, वो एक कॉलीफ्लावर जैसे रहता है ना, गोभी टाइप के हिसाब से वो दिख पड़ता है. तो क्लॉरीफ्लावर टाइप ऑफ लीजन्स और द ग्रोथ आर मोर ऑफ द वायरल इन्फेक्शन विच आर मोरली द पैपिलोमा टाइप ऑफ वायरसेस. द अदर आर जो वायरसेस या अदर जो मस्से जो बहते हैं, दे आर डिस्टिंक्ट वन. ते वो स्किन स्कैटर्ड रहेंगे, वो स्किन प्रॉब्लम रहेंगे. वो भी HPV है लेकिन नहीं, दैट इज नॉट HPV, दैट इज द नेवियस. वो पार्ट ऑफ तुम्हारा मेलानिन. हाँ, वो फैलता नहीं, वो मेलानिन की वजह से होता है. तुम्हारे HPV फैलता है आपस में. HPV कैसे फैल सकता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन से, आइदर विद पर्सन इन पर्सन कांटेक्ट और आपसे कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे टॉवेल हो गया, नाई की दुकान में बिल्कुल रेजर, वो टॉवेल्स, उससे भी HPV फैलता है. पर HPV इज ऑन अगेन कम्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट्स पे ही आते हैं? नहीं, नॉर्मली HPV वायरसेस जो है वो इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन फीमेल्स. ओके. फीमेल्स में ज़्यादा होता है. ठीक है. जो पर्सनल हाइजीन यदि मेंटेन बराबर नहीं रही, उसकी वजह से भी बहुत बार उनको भी ये वायरस इन्फेक्शन हो सकता है. उसका डर ये है कि ये HPV वायरस जो है ये आगे में CA सर्विक्स, जो यूट्रस का नीचे का मुंह का सर्विक्स का जो कैंसर बोलते हैं, उसके तरफ ये उसका एक प्रीकर्सर है, उसके तरफ उसका एक रिस्क फैक्टर है. दैट रिमाइंड्स मी टू अ क्वेश्चन कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कुछ HPV वैक्सीन आती है. वैक्सीन, हाँ, HPV वैक्सीन आती है. हाँ. उसके बारे में थोड़ा बताइए. आई थिंक मैंने उसके बारे में पढ़ा भी बहुत है, बट वो लोगों को गलत फहमी है कि वो कभी भी ले लो तो चलता है. बट आई हर्ड दैट वो पहले ही लेना चाहिए. नहीं, पहले लेना चाहिए. जो नॉर्मली एडोलेसेंट गर्ल्स में भी शुरू हुआ है. HPV वैक्सीन जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए एडोलेसेंट गर्ल ने. और व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंट? 13 to 19 म्हणजे बिफोर द सेक्सुअल एक्टिविटी, जो उनका एज रहता है उसके पहले. HPV या फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन्स निकली है वो कहाँ असर करती है? क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा था, वो उन्होंने बताया कि अभी कुछ लेकर फ़ायदा नहीं, वो पहले लेना चाहिए. तो कब लेना चाहिए? देखो, अभी कैसा है कि HPV वैक्सीन एक वायरस इन्फेक्शन है. आपका सेक्सुअल लाइफ शुरू होने के पहले आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वो HPV वैक्सीन आगे में ये समस्या ना हो करके लेना रिकमेंडेड है. तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल लाइफ शुरू होने के पहले ये वैक्सीन लेना काफ़ी ज़रूरी है. एनी एज फ्रॉम? नॉर्मली सेक्सुअल लाइफ आफ्टर मैरिज शुरू होती है तो 18 to 20 है. आजकल सेक्सुअल लाइफ थोड़ा जल्दी भी शुरू हो रहा है 18 to 20 में, तो बिफोर 18 रिकमेंड करते हैं लोग कि HPV वैक्सीन लेना ज़रूरी है. बट किसको लेना चाहिए, किसको लेना नहीं चाहिए, डेफिनेटली उस गर्ल ने या उस पर्सन ने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से लेना चाहिए. बट इट शुड बी डन बिफोर द सेक्सुअल लाइफ. व्हाट अबाउट लेट्स से किसी दो एक कपल है, उसमें से एक को हर्पीस हो जाता है, एंड देन ऑब्वियसली हर्पीस होना या STD होना इज अगेन अ मेंटल प्रॉब्लम. वो एक प्रॉब्लम में होगा, तो वो कैसे फिर करेगा आगे? आई मीन हाउ डू दे? नहीं, उसके लिए सिंपल सलाह है कि कोई हर्पीस या हेपेटाइटिस किसी को हो गया है तो नॉर्मली उसने सेक्सुअलिस्ट के पास जाना चाहिए. उसका जो स्टेज है वो देख लेना चाहिए और स्टेज के हिसाब से उनकी सलाह लेना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए. दैट इज बेटर आंसर.